کچھ واقعات ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. پہلا واقعہ جو ہے میرے کزن ہیں, میری پھوپھو کے بیٹے ہیں, ان کے ساتھ پیش آیا. وہ ایس ٹی سی کمپنی میں ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں, اور ریاض ریجن میں, ریاض سٹی میں. اور کمپنی نے ان کو کسی کام سے ہائل بھیجا, ہائل ایک اور سٹی ہے وہاں پہ بھیجا. اور کمپنی نے ان کو بولا کہ آپ خود سے ہوٹل سرچ کر لیں, خود سے کہتے ہیں فائنڈ کر لیں, کوئی پراپر بکنگ نہیں تھی. اور انہوں نے بولا کہ ہم فردر آپ کو پے کر دیں گے اس کا. تو انہوں نے تھوڑی سرچ کے بعد ایک اچھا ہوٹل ان کو ملا, اور انہوں نے وہاں پہ 40 ڈیز رہنا تھا. اس حساب سے ان کی جو بھی بات چیت ہوئی, اور انہوں نے ایک ہوٹل جو ہے نا وہ فائنل کیا. تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہی دن ایکچولی وہ 2 لوگ تھے, اور دونوں نے سیپریٹ روم لیے پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو میرے کزن بتاتے ہیں کہ پہلے دن ہی کہتے 3 اسٹار ہوٹل تھا, ایوریج ہوٹل تھا, اور کہہ رہے تھے کہ پہلے دن رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کہتے میں نے ٹی وی بند کیا اور میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, تو مجھے نا بچے کے رونے کی آواز آئی. اب بچے کی رونے کی آواز ایسی تھی, ان کو لگا کہ کسی ساتھ والے روم سے آ رہی ہے, یا پھر باہر کسی نیبر میں کوئی اور, لائک ہوٹل کے سراؤنڈنگس میں اگر کوئی گھر ہوں گے, وٹ ایور لاجکس جو ہے نا وہ ڈھونڈنا شروع ہو گئی. تو پہلے دن گزرا, دوسرا گزرا, اچھا ڈیلی رات 1 بجے کے قریب بچے کے رونے کی آواز آتی تھی, 1-1:30 بجے کے قریب. تیسرے چوتھے دن جو ہے نا انہوں نے اریٹیٹ ہو کے بہت زیادہ کہ یہ ڈیلی کا کہتے معمول بن گیا ہے کہ بچے کی رونے کی آواز آتی ہے. تو وہ اٹھے ہیں, انہوں نے لائٹس آن کی ہیں, اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا ہے, ونڈو اوپن کر کے باہر دیکھا ہے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے. تو کچھ سمجھ نہیں آیا, تو کہتے ہیں واپس لائٹس آف کر کے واپس آ کے لیٹے ہیں اپنے بستر پہ. کہتے ہیں کہ میرے بیڈ کے بالکل سامنے ٹی وی تھا, اور اس کے رائٹ سائڈ پہ کبرڈ ہے. کہتے ہیں کبرڈ کے ساتھ کہتے میری نظر پڑی ہے, وہاں پہ ایک 12 سال کا بچہ ہوگا غالباً, 11-12 سال کیا, یہی کہتے ہیں کہ اس کی ایج ہوگی. وائٹ کلر کا اس نے ڈریس پہنا, اور اس نے اپنا سر ٹانگوں کے بیچ رکھا ہوا, اور وہ رو رہا منہ میں نا. تو بہت زیادہ نہیں رو رہا, ہلکا ہلکا سسکیاں لیتے ہوئے نا وہ رو رہا. تو کزن بتاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ڈر گئے کافی زیادہ وہ, اور کہتے ہیں لیٹے لیٹے وہ دیکھ رہے تھے اس کو, تھوڑی دیر دیکھتے رہے, ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھیں کمرے سے باہر جائیں. کہتے بس اسی طرح ہی کہتے میں تھوڑا سا نیچے ہو کے مثلاً کہ تھوڑی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں اسی طرح تھوڑا سا نیچے ہو کے لیٹا ہوں, پراپر آیت الکرسی پڑھی ہے, آنکھیں بند کی ہیں, اور کہتے میں سو گیا. تو صبح اٹھ کے پھر انہوں نے مینجمنٹ کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ سین ہوا ہے, اور پھر انہوں نے جو ہوٹل والوں نے ان کو ایک اور کمرہ دیا. تو انہی کزن کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا. یہ پرانی بات ہے, 90s کی بات ہے, لائک 1998 یا پھر 1999 ان دنوں کی بات ہے. یا یہ کالج لائف میں تھے یا اسکول میٹرک میں ہوں گے اس ٹائم, ان کی ایج اتنی تھی. تو ان کے جو والد صاحب ہیں ان کی 2 شادیاں ہیں, اور ان کے والد صاحب سیپریٹ ہو گئے تھے ڈیو ٹو سم ریزنس. وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتے تھے, اور ان کے سوتیلے بھائی ہیں دوسری ان کی جو والدہ ہیں وہاں سے, اور یہ اپنے ابو کو ملنے کے لیے جاتے تھے جسٹ. اور زیادہ ان کی یعنی کہ بس یہ تھا کہ کبھی ہفتے میں 1 دفعہ اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. تو ان کے والد صاحب کچھ بلیک میجک میں انوالو تھے. تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن یہ گئے ہیں وہاں پہ, ان کے جو دوسرا گھر تھا, میں لوکیشن وغیرہ بالکل شیئر نہیں کروں گا, تھوڑا کانفیڈینشیل ہے یہ. تو اب باقی یہ کہ ان شارٹ کہ وہ وہاں پہ گئے اپنے والد صاحب سے ملنے, تھوڑا سا لیٹ گئے, تقریباً عشاء کے بعد کا ٹائم تھا. تو ان کے جو اسٹیپ بردرز ہیں انہوں نے دروازہ کھولا, اور وہ اکثر ان کو تنگ بھی کرتے تھے. عمر میں چھوٹے ہیں ان سے, اور ان کو تھوڑا
तंग वगैरह करते थे काफ़ी। तो इनको पता लगा कि अब्बू घर पे नहीं है, तो ये कहते हैं कि घर के अंदर एंटर होते थे, गैराज था और घर की ऐसी लोकेशन थी कि गैराज के बाहर एक दरवाज़ा था जो कि सहन में खुलता था, और सहन के सारे बाउंड्रीज में जाना मुख्तलिफ कमरे बने हुए थे और इस तरह का पुराने तर्ज का ज़रा घर था। तो वो वहाँ पे सहन से ऊपर सीढ़ियाँ थी और वहाँ पे एक सेपरेट एक रूम था, वहाँ पे सोने के लिए चले गए। और उस रूम में उसी दिन उनके वाले साहब ने कुछ पढ़ा था या कुछ किया था, वहाँ पे प्रॉपर बैठ के कुछ उन्होंने जो भी उनकी तालीम होती थी जो भी वो उन्होंने की हुई थी, और इस चीज़ का इनको नहीं पता था। ये वहाँ पे गए हैं, ये वहाँ पे जाके लेट गए। तो अच्छा, अब इनको ऐसा ये करवट लेके लेटे हुए, इनकी बैक साइड पे डोर है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि सीढ़ियों से, वो लोहे की सीढ़ियाँ थी, उनको लग रहा है कोई सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब ये दिल में सोच रहे हैं कि मेरा भाई होगा और ये मुझे तंग करने आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि वो जैसे ही मेरे पास आएगा मैं इसको फिर पकड़ूंगा या इसको डांटूंगा, इसकी थोड़ी पिटाई वगैरह करूंगा ताकि मुझे तंग ना करे। तो सीढ़ियों से प्रॉपर चलने की आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा खुलने की और बंद होने की आवाज़ आई। अच्छा, ये रेडी बैठे हैं कि भाई ये कोई आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको जो है ना इसको पकड़ के इसको डांटूंगा। तो आवाज़ कोई किसी चीज़ का एहसास कि भाई बहुत ही आपके पास आ गया, किसी चीज़ की प्रेजेंस, इनको ऐसे लगे कि बिल्कुल मेरे को पीछे इस वक्त खड़ा हुआ है। तो इन्होंने एकदम से करवट बदली और मसले में डांटने के लिए ना कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, मुझे पता है तो मुझे तंग करने आए हो, इस तरह का कुछ कहते। जब इन्होंने करवट बदली तो सामने जो भी चीज़ थी, कहते उसका सर दीवार से ऊपर था, उसके बाल काले रंग का, उसका ड्रेस और उसके लंबे लंबे बाल थे, ठीक है, और उसका सर उसका जो है वो दीवार से ऊपर था, वो विजिबल नहीं था, इतनी लंबी उसकी वो हाइट थी, वो जो भी चीज़ थी। तो ये लाइक कहते हैं बहुत डर गए और क्या कहते हैं, बस इनको तो बस कुछ समझ नहीं आया कि जैसे तैसे जो तस्बीहात मुंह में आई उन्होंने पढ़ी, कुछ जो कलमे वगैरह आए पढ़ ले, आंखें बंद कर ली, और इसी तरह इनको कहते पता नहीं कब मुझे पता लगा, मसलन कब मुझे नींद आ गई। तो वेरी नेक्स्ट डे फिर जो है ना वो पता लगा कि उनको, जब उन्होंने अपने अब्बू को बताया तो उन्होंने बताया, डांटा कि भाई तुमने नेक्स्ट टाइम उधर नहीं जाना, और वो लाइक कॉन्फिडेंशियल रूम है वहाँ पे नहीं जाना नेक्स्ट टाइम बताया बगैर, तो मना किया। तो एनीहाउ फिर वो एक आलिम दीन थे, उनको भी दिखाया, उनको दम वगैरह करवाया, डर गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो डर के लिए उनको फिर दम वगैरह करवाया सारा। तो सर एक ये वाक़या है, और एक और वाक़या मैं बताना चाहूँगा, ये मेरी हमजुल्फ जो हैं उनके साथ हुआ। वो उन दिनों में आउट ऑफ कंट्री होता था और मेरी वाइफ जो है वो अपनी सिस्टर के घर रहने गई हुई थी हाफिज़ाबाद। तो ये वाक़या ऐसा है कि वो हाफिज़ाबाद से जो मेरे कज़न हैं, मेरी जो उनकी जो मेरी वाइफ की सिस्टर हैं, वो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, वो मेरी वाइफ को वापस फैसलाबाद ड्रॉप करने के लिए आ रहे थे। सिर्फ हाफिज़ाबाद से जो मोटरवे की तरफ जाएं तो वो जो रोड है, वो मोटरवे का जो जहाँ पे वो कनेक्ट होती है वो रोड, वो सुखे की कहलाता है। अब हाफिज़ाबाद से सुखे की जाएं तो वो रोड बहुत ही कोई हॉरर किस्म का रोड है, बीच में एक आधे गांव आ जाता है, मसलन कि गालबन 30 किलोमीटर होगा डिस्टेंस, या 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। और वो बहुत ही, यानी कि वहाँ पे ना रोड कभी एकदम से लेफ़्ट टर्न, कभी राइट टर्न आ रहा है, बड़े ख़तरनाक टर्न है वहाँ पे, और खेत बहुत ज़्यादा हैं, और बीच में छोटे मोटे गांव आ जाते हैं, फिर से खेत ही खेत, और फिर वो दरख्त ही दरख्त, और जंगल तो नहीं कह सकते, खेत ही खेत। तो इस तरह का कुछ वहाँ पे वो रोड ऐसी है, और रात के वक्त तो काफ़ी ज़्यादा ही वो एक हॉरर लुक देती है। तो वो बताते हैं कि सर्दियाँ थी और नॉर्मली सर्दियों में जल्दी रात लंबी होती है तो जल्दी लोग सो जाते हैं। इस तरह तो तकरीबन गालबन कोई 10 बजे का टाइम था। तो कहते हैं कि उस रोड, बिल्कुल रोड के ऊपर, कहते हैं उन्होंने जो ख़वातीन थी वो बैक सीट पे बैठी हुई थी, बच्चे आगे बैठे थे 2, और कहते हैं उन्होंने, जो मेरे जो कज़न हैं, उन्होंने गाड़ी एकदम से स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की ना। तो तब तो नहीं किसी ने भी नोट किया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो कुछ आगे दूर जाके कहते हैं कि भाई आपने वो दुल्हन देखी थी, वो औरत देखी थी?
घर वालों से पूछा, सबने कहा नहीं, बच्चों ने भी नहीं, जो बच्चे आगे बैठे थे उन्होंने भी नहीं देखी, सिर्फ इनको नजर आई। ये स्ट्रेंज थिंग है, ये बहुत डरे गए थे। कहते कि वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा, ना कोई पास कोई आबादी थी, सिर्फ वो उस जहाँ पे उन्होंने इस औरत को देखा, वो खेत ही खेत थे। कहते एक औरत थी जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे, दुल्हन बनी हुई औरत थी, और प्रॉपर उसका चेहरा देखा था और बहुत बुरा चेहरा था उसका। कहते कि वो औरत वो रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी हुई थी। तो कहते उसको देख के फिर मैंने गाड़ी तेज कर दी थी, तो और किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ उनको नजर आई, या बाकी शायद बातें करने में मसरूफ थे। एनी हाउ ये सीन उनके साथ हुआ। तो लास्ट वाक़या जो है वो भी थोड़ा सिमिलर सा है, उसमें भी एक दुल्हन नज़र आई थी। ये 1960s की बात है। ये मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनके भाई हैं, उनका वाक़या है। लाहौर में लाहौर मॉडल स्कूल संत नगर, उसके बिल्कुल बिसाइड इनका घर है। तो अब लाहौर, वो पहले वो 1960s में तो लाहौर मॉडल स्कूल नहीं था, वहाँ पे एक गवर्नमेंट की जगह थी, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, उसको जंज खाना बोलते थे। वहाँ पे दूसरे शहरों से जो जिस आजकल के हमारे बैंक्वेट हॉल्स वगैरह होते हैं, मे भी उस तरह की कोई जगह थी कि जो शादियाँ वगैरह होती थी वहाँ पे, तो जो दूसरे लोग शहर से लोग आते थे वहाँ पे स्टे करते थे, इस तरह का कुछ सीन था। तो उसको जंज खाना बोलते थे। तो वो मेरे जो वालदा हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मुझे बताती हैं कि उनके भाई ने देखा, वो अपने घर पे थे, अपने घर से वो उनकी नज़र पड़ी, दोपहर का वक्त था, गर्मियों की दोपहर थी। उन्होंने देखा कि वो जो जंज खाना जिसको बोलते थे, उसकी जो छत है, उस बिल्डिंग की जो छत है, वहाँ पे एक दुल्हन खड़ी हुई है, और उधर और कोई फिलहाल और कोई बंदा नहीं था, ना बंदे की ज़ात थी, वो दुल्हन खड़ी है। और वो उन्होंने देखा उसको, तो अभी सोच ही रहे थे कि ये दुल्हन कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ कोई ना भी तो कोई बारात भी नहीं आई, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो ये दुल्हन क्या कर रही है। तो उनके देखते ही देखते कहते वो दुल्हन जो है वो उस छत से इनकी छत पे विद इन सेकेंड्स आई है। उसके टांगें लंबी हुई हैं, या वो तो ये बताते हैं कि उनकी टांगें लंबी हुई हैं। कहते हैं उसने एक कदम रखा इस छत पे और दूसरा कदम रखा उनकी छत पे आ गई। तो ये डर के मारे बेहोश हो गए थे। ये इतना इनको डर की कैफियत थी कि ये बेहोश हो गए थे। जब ये होश में आते तब इन्होंने बताया कि एक औरत थी जो उस छत से इस छत पे इस तरह जो है टांग लंबी करके वो आ गई थी, और वो दुल्हन के कपड़ों में थी।